जो बच्चे को खाना खिलाते वक्त सारा ग्राइंड करके खिला देते हैं, ये नहीं करना है। तो थोड़ा बाहर खेलने देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोबाइल एंड टेलीविज़न कैसे अफेक्ट करता है बच्चों का लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। जितना बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उनका ज़्यादा लैंग्वेज डिले का इशू है। ऑटिज्म डिजीज़ नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। ओके, वो बच्चा ऐसा 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 कर रहा है आंखों के सामने, गुस्सा आया सर मार दिया, बिहेवियरल प्रॉब्लम, तभी हमें समझ में आना चाहिए देयर इज समथिंग रॉन्ग। जो तो বাচ্চাটা মানে আলাদা আলাদা জায়গায় যাবে, যত কাজ করবে অত বাচ্চাটার ব্রেনের ইমপ্রুভমেন্ট আসে। নমস্কার, ইউনিভার্সাল জিনিয়াস কেয়ারের মাধ্যম থেকে আজকে আমাদের প্রীতিস্মিতা কৃষ্ণাত্রেয় ম্যাডামকে আজকে আমরা একটা উত্তরীয়র মাধ্যমে সম্বোধনা জানাচ্ছি। নমস্কার ম্যাডাম, ওয়েলকাম টু ভারত। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। কৃষ্ণাকান্ত স্যারকে ফেলিসিটেট করছি উত্তরীয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। নমস্কার দর্শকবৃন্দ, আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা শিলচর নিউজে স্পেশাল একটা ভিডিও আজকে নিয়ে আসলাম। আজকের এই ভিডিওটা স্পেশালি প্রত্যেক যারা গার্জিয়ান যারা আছেন প্রত্যেক মা বাবাকে দেখা দরকার, বা যারা বিবাহ করার জন্য যারা প্ল্যান করছেন, তো আপনারা নিশ্চয়ই এই ভিডিওটা দেখবেন। এবং যদি আপনাদের কোনো পরিচিত যারা এরকম বিবাহ করার জন্য প্ল্যান করছে বা সেই বাচ্চা হওয়ার জন্য প্ল্যান করছে, ওনাদেরকে আপনারা এই ভিডিওটা একবার পাঠিয়ে দেবেন, কারণ এই ভিডিওটা খুব জরুরি। একটা বিরাট বড় একটা সমস্যা নিয়ে আমরা আজকে এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব, এবং এই সমস্যাটা আপনার যদি আজকে হচ্ছে না, হয়তো ভবিষ্যতে হতে পারে। তাই আগে থেকেই কীভাবে প্রিকশন করা যায় তার সম্বন্ধেও আজকে আমরা আলোচনা করব। আমরা আজকে স্পেশালি অটিজম, স্পিচ ডিলে, এইগুলা নিয়ে স্পেশাল যে সকল বাচ্চারা আছে এইগুলা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, কারণ এখন দেখা গেছে যে আমাদের সমস্ত ওয়ার্ল্ডে, বিশ্বে এই সমস্যাটা খুবই দ্রুত গতিতে বাড়ছে। অনেক বাচ্চারা আপনারা হয়তো আপনাদের দেখতে পেয়েছেন যে বিভিন্ন ছেলেমেয়েরা খুব মানে অনেক লেট হয় ওনাদের কথা বলতে, বা বুঝে না, অটিজমের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। তো এইগুলা থেকে কিভাবে আগে থেকে বাঁচবেন সেটা নিয়ে আলোচনা করব, এবং যাদের বাচ্চাদের এরকম হয়েছে ওনারা কিভাবে এটা থেকে নিজের বাচ্চাদেরকে ঠিক করবেন সেটা নিয়েও আলোচনা করব। তো আমাদের সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে অ্যাকচুয়ালি আমরা ইউনিভার্সাল জিনিয়াস কেয়ারে এসেছি। এখানে আমাদের স্পেশাল একজন গেস্ট এসছেন গুয়াহাটি থেকে, উনি স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজিস্ট মিস প্রতিস্মিতা কৃষ্ণাত্রেয়া। এম আই রাইট ম্যাডাম? ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি নামটা খুব কষ্ট করে আমি উচ্চারণ করেছি। তো আজকে আমরা স্পেশাল জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো ম্যাডাম ওয়েলকাম। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। तो आज का जितना भी बातचीत होगा मैं हिंदी बंगाली जितना मुझे आता है उतना मिक्स करके मैं बात करूँगी आप लोगों से। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, और मैं यहाँ पे आके एटलीस्ट काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर पा रही हूँ। तो एंड उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक इंसान है जो है दीपा मैडम, तो उनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। एंड आई थिंक जो पूरा होल यूनिवर्सल जीनियस केयर के पीछे जो इंसान है वो है हमारे दीपा पॉल मैडम। तो उनको मैं फिर से और एक बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड सर थैंक यू सो मच। तो मैडम पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप क्या करती हो? ओके, मैं एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो जैसे बोलते कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट क्या है, मतलब पहले सुनते से यही सब क्वेश्चन करते हैं, राइट? तो एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इज मेनली क्या होते हैं जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पे काम करते हैं। মানে আমরা কি করি যে যারা কথা বলতে পারে না, মানে কথাটা মেইন ওয়ান অফ দ্য ওয়ে অফ কমিউনিকেশন, একটা মানে কমিউনিকেশনের জরিয়া। তো ওইটাতে আমরা কাজ করি। যদি কথা বলাটা যদি ভালো করে হয় না, বা কথা লেট হচ্ছে, বা কোনো দের কি হয় কি যখন স্ট্রোক হয়ে যায় তখনও কথা বলতে পারে না, তখনও আমরা ওইটাতে কাজ করতে পারি। বা যদি ভয়েসের প্রবলেম থাকে, কথা মানে মাঠটা ভালো করে আসছে না, তখনও আমরা কাজ করতে পারি। কোনো লোকের কি থাকে যেরকম মানে ছেলেদের মেয়ের মতন আওয়াজ থাকে, ওইটাও ঠিক করা যায় থ্রু ভয়েস থেরাপি। তারপরে ধরেন কেউ কোনোদের এরকম যে কথা আটকে কথা বলে, লাইক আমরা যেটা বলি বকরা বলি, রাইট? স্ট্যামারিং, হ্যাঁ স্ট্যামারিং, তো ওইটাও ঠিক করা যায় উইথ স্পিচ থেরাপি। ওকে, সো বেসিক্যালি আই এম এ স্পিচ থেরাপিস্ট, অ্যান্ড আমি এই যে স্পিচের যে কোনো সমস্যাতে কাজ করি। এখন अभी हम लोग जितना पता है कि ऑटिज़म पकड़ लीजिए आप, स्पीच डिले हो गया, ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है? क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है? ओके, ये तो बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है। अभी यहाँ इस चीज़ पे बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, मैनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दिस, पर एग्जैक्ट कॉज एज सच है नहीं, पर बहुत सारे थियोरीज़ है
जैसे कि अभी बोलते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी टॉक्सिन्स है अभी, तो वो सारे टॉक्सिन्स वन ऑफ द फर्स्ट फैक्टर। তারপরে হয়ে যায় যে যখন প্যারেন্টস লাইক মাদার ইজ প্রেগনেন্সির টাইমে মেইনলি, সো প্রেগনেন্সির টাইমে কি হয়ে যায় যদি মাদার ইজ নট ভেরি মাচ ইন আ ফিজিক্যাল ওয়ার্কিং মোড, ফিজিক্যালি ওয়ার্ক বেশি করে না অ্যান্ড টু মাচ অফ মেন্টাল স্ট্রেস, ওইটাও একটা রিজন হতে পারে। মানে কি হয়ে যায় যখন আমরা মেন্টাল স্ট্রেস অনেক থাকি তখন এন্ডোরফিন রিলিজ হয়, তো তখনও নিউরাল কানেকশন যেটা ফার্স্ট স্টার্ট হয় ইন দ্য এমব্রায়ো ওইটা তো একটু মানে এফেক্ট হতে পারে। থার্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং হুইচ ইজ সিন নাওয়েডেজ, মানে আজ এখন অনেক দেখা যায়, ওইটা হলো যখন বাচ্চাদের জন্মর পরে অনেক আজ এখন মানে সমাজের সাথে মিলামিশা করে না ফার্স্ট। সেকেন্ডলি কি হয়ে যায় আমি বাচ্চাদেরকে অনেক জিনিস দিই না, মানে খেলতে छूते, मैंने जब भी एक बच्चा बड़ा होता है उनका सारे सेंसेस डेवलप होता है, राइट। सो ये सेंसेस अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है तो बच्चे को वो सेंसेस से वर्ल्ड से अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आने पर उसको समझ में ही नहीं आएगा, वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आएगा तो बात समझेगा ही नहीं, बात समझेंगे ही नहीं तो बात बोलेंगे ही नहीं। सो दैट इज़ द वन ऑफ द मेन रीज़न। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स मिलके मैक्सिमम टाइम आजकल ये हो रहा है कि बच्चे बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा एक बहुत सैड पार्ट है कि आजकल मोबाइल एंड टेलीविज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मोबाइल एंड टेलीविज़न कैसे अफेक्ट करता है बच्चों का लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला अभी कि लैंग्वेज हम लोगों का जो डेवलप होता है वो आफ्टर डेवलपिंग ऑल द सेंसेस, सारे सेंसेस डेवलप होने के बाद पूरा सेंसेस काम करता है एक साथ, उसके बाद हमें समझ में आता है, फिर लैंग्वेज डेवलप होता है। पर अभी जब एक बच्चे को हम मोबाइल या टीवी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोगों का जो विजन सेंस है, जो देखने वाला सेंस है और सुनने वाला सेंस है, ये दोनों सेंसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करने लगता है। और जबकि हमारा बचपन में हमारा ब्रेन ऑलमोस्ट खाली रहता है, उस टाइम पे हमारा ब्रेन में सारे सेंसेस का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होता है, तो जैसे सुनने वाला और देखने वाला में ज़्यादा मात्रा से काम करने लग गया तो बाकी सेंसेस क्या होता है धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट करते हैं, मिल के काम करना बंद कर देता है। ये और एक हाइपोथेसिस है, पर हाँ हाइपोथेसिस मतलब वो काफ़ी हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस के टाइम भी यही देख रहे हैं कि जितना बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उनका ज़्यादा लैंग्वेज डिले का इशू है, तो ये क्लिनिक के लिए भी रिलेट हो रहा है। मेरे घर में भी मैंने देखा है स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के कारण मेरा जो बच्चा है उसका स्पीच डिले हुआ है, तकरीबन लग रहा है मुझे 1-1.5 साल वो मतलब ডিলে हुआ ডিলে है। ওকে ওকে, সো দিস ইজ আ ভেরি কমন প্রবলেম। একটা জিনিস ম্যাডাম যেটা বললেন যেটা খুব প্রত্যেক যারা মা বাবা বলুন বা নতুন যারা এখন প্রেগন্যান্ট যারা মহিলা ওনাদের একটা জিনিস উনি যেটা বলেন সেটাও একটা কারণ হতে পারে যে প্রেগন্যান্সির সময় কাজ না করা, শুধু মেন্টাল স্ট্রেস নেওয়া। তো ফিজিক্যাল ওয়ার্কআউট আগে আমরা যে সময় ছোটো ছিলাম আমরা সে সময় শুনতাম তে গ্রামে গঞ্জে যে সময় ছিল তো যারা মারা হতেন যারা প্রেগনেন্ট হতেন ওনাদের অনেক ধরনের কাজ দেওয়া হতো फिजिकल एक्टिविटी, तो फिजिकल एक्टिविटी होने से भी है हाँ अच्छा है। हाँ, एंड वन मोर थिंग ऑल्सो इज देयर, टेराटोजेंस का जो मैंने बात बोला इसमें जस्ट महिला के ऊपर आ रहा है, इसमें फादर के ऊपर भी बहुत सारा बात आता है। स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द वेरी बिग रीज़न जहाँ पे स्पर्म मतलब न्यूरनल जो स्पर्म्स में ये रहता है हमारा डीएनए रहता है उसमें डिफॉर्मिटी होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल फ्रॉम द मेल साइड, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी रीज़न, एंड इनफर्टिलिटी का भी वो काफ़ी ज़्यादा रीज़न होता है आजकल इन दोनों वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इनफर्टिलिटी जो विभिन्न ধরনের সমস্যা হয় স্মোকিং এবং ড্রিঙ্কিং বা एनी काइंड ऑफ नशा, या एनी काइंड ऑफ नशा, मतलब दिस आर एट द एंड टॉक्सिन्स ना, हम ये सब तो खराब चीज़ें ही है तो इसीलिए खराब चीज़ें बोलते हैं बिकॉज इट्स नॉट गिविंग एनीथिंग फ्रूटफुल। तो आप एक बात बताइए, आप कितने सालों से इस प्रोफेशन में हैं? मैं तो अभी 9 सालों से इस प्रोफेशन में हूँ। तो आप जैसे कि आपने बोला कि आप स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट या फिर पैथोलॉजिस्ट जो बोला, इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या काम? हमें पहले तो बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी करना होता है, इंडिया में ऐसा है, एंड फिर उसके बाद मास्टर्स में हम लोग या तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कर सकते हैं या तो मास्टर्स इन ऑडियोलॉजी कर सकते हैं या तो और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी एक साथ है। ये आप दोनों किए हैं? हाँ, मैंने मास्टर्स इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी किया है, मैंने सेपरेट वाला किया। ओके ग्रेट। तो একটা স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজিস্ট বা থেরাপিস্ট হতে হলে এই মাস্টার্সটা নিতে লাগে,
नेवार पड़े आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे मतलब बिना डिग्री के ही ऐसे चल जाता है, ऐसा कोई होता है? एक्चुअली वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी क्योंकि आपको एज ए स्पीच पैथोलॉजिस्ट या तो ऑडियोलॉजिस्ट हिसाब से काम करने के लिए कम से कम मिनिमम बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का आपका डिग्री होना पड़ता है। Okay. मास्टर्स करने पे दैट इज़ योर सुपर स्पेशलाइजेशन, वो अलग बात है। पर और हम लोग का और एक कोर्स है डिप्लोमा इन हियरिंग एंड लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज, उसमें है DHLS करके। तो इफ़ समबडी इज़ अ DHLS, कोई अगर DHLS है तो वो एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट के अंदर काम कर सकते हैं। Okay. उस हिसाब से बनाया गया था। पर बहुत टाइम देखा जाता है DHLS भी आजकल अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं क्योंकि उन लोग का कोर्स जो है 1 साल का कोर्स है, और जो बैचलर्स एंड मास्टर्स कर लेते हैं, बैचलर्स इज़ 4 years, जो चीज़ हम लोग 4 साल सीखते हैं वो 1 साल में थोड़ा बहुत सिखाते हैं। सो दैट क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट जहाँ जहाँ मास्टर्स एंड बैचलर्स लोग नहीं पहुँच पा रहे वहाँ पे DHLS जाके थोड़ा बहुत हेल्प करे। ये कोर आइडिया था जब DHLS कोर्स स्टार्ट किया था। पर अभी ऐसा हो गया है कि DHLS आर विदाउट एनी, जिनका उनका वो सर्टिफिकेशन नहीं होने पे भी वो लोग कर रहे हैं। ये तो चलिए ठीक है, उसके बावजूद ऐसे भी बहुत लोग हैं जिसका कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है, ना ही DHLS है, ना ही BSLP है, ना ही मास्टर्स है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग जाके थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीख के, क्योंकि आजकल यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, तो उन लोगों को लगता है ये ऐसे कराने से ऐसे होगा, तो वही सीख के जाके दे ओपन अप सेंटर्स, थेरेपी सेंटर्स, और पेरेंट्स को बहुत टाइम पता नहीं होता है कि ये ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं है। मिसगाइड हो जाते हैं और उसमें क्या हो जाते हैं, उन लोगों का बहुत साल चला जाता है बच्चों का। जैसे कि मान लीजिए उसी दिन आया, 2 साल में उसको ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ था, तो वो लोग एक जगह पे गए जहाँ पे कोई प्रॉपर थेरेपिस्ट नहीं थे। अगर हम लोग बात करें ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का भी, हमारा ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जो मैंने आपको बोला कि सेंसरी डिसऑर्डर्स, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में अभी जो वाला प्रॉब्लम है, इसमें ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का मतलब हाथ होता है। तो सेंसरी इंटीग्रेशन में ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट काम करते हैं। तो अगर उसमें भी अनक्वालिफाइड पर्सन हुआ या तो स्पीच थेरेपिस्ट में भी अनक्वालिफाइड पर्सन हुआ, उस बच्चे का प्रॉब्लम अलग तरीके का होने का चांस होता है। हल्का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बढ़ जाने का चांसेस रहता है। तो ऐसे क्या करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स पता नहीं होते हैं, तो 2 साल 3 साल तक वो लोग थेरेपी करते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, उल्टा उनका ख़राब होता है। तो उसके बाद दे गो एंड सर्च फॉर ए गुड प्लेस में भी तब तक उन लोगों का टाइम बहुत चला जाता है। और एक बार उम्र चला जाने के बाद कितना भी आप थेरेपी करा लेते हैं, उसमें उतना इम्प्रूवमेंट आपको नहीं मिलता है। मतलब आपके हिसाब से कम एज में ही अगर इसको पकड़ लिया गया तो जल्दी से थेरेपिस्ट के पास आना चाहिए। यस, वो भी स्पेशलाइज एंड क्वालिफाइड थेरेपिस्ट। মানে দর্শকবৃন্দ, মানে একজন স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজিস্ট বা থেরাপিস্ট হতে হলে পার্টিকুলার একটা ডিগ্রির দরকার হয়। তো আপনারাও হয়তো দেখেছেন অনেক সেন্টার খুলেছে যেখানে উইদাউট ডিগ্রি এই সেন্টারগুলো চালানো হয়। তো সেটাতে কি হয়, ওনার মতে মিসগাইড হয়ে যায়, एग्जैक्ट জায়গাতে সেই বাচ্চারা পড়ে না। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी बच्चे का ऑटिज़म का कोई अगर प्रॉब्लम हुआ तो क्या वो क्योरेबल है आपके हिसाब से? इस क्वेश्चन से पहले मैं और एक आंसर बोल लेना चाहती हूँ। अभी जैसे हमने क्वालिफिकेशन का बात किया, इसमें एक तरीका है जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंसान क्वालिफाइड है कि नहीं है। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम लोग का जो RCI का एक वेबसाइट है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे जाके जो भी थेरेपिस्ट होते हैं ना, हम लोगों का थेरेपिस्ट का एक CRR नंबर होता है, स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट का एक CRR नंबर होता है। जो बैचलर किया हुआ, जो मतलब प्रोफेशनल है, उनका A से स्टार्ट होता है, और जो DHLS होते हैं उनका B से स्टार्ट होता है। तो आप अगर वो CRR नंबर वहाँ पे डालेंगे RCI के वेबसाइट में, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पे, आपको उस इंसान का सारा डिग्री विग्री सब कुछ मिल जाएगा, ऑथेंटिसिटी आपको मिल जाएगा। ये अवेलेबल है। कोई भी अगर पेरेंट्स देखना चाहता है कि ये इंसान एक्चुअली ऑथेंटिक है कि नहीं, RCI सेंटर में मतलब वेबसाइट में जाके देखने से सिर्फ खोल के पैसों के लिए ही चला रहा हो ऐसा? हाँ, एग्जैक्टली, पता चल जाएगा, हो जाता है। अच्छा, तो मेरा अभी क्वेश्चन जो था कि ऑटिज्म क्या क्योरेबल है? ऑटिज्म देखिए, क्यूरेबिलिटी तब आता है जब एक डिजीज़ होता है, राइट? जब हम लोग का डिजीज़ होता है तब हम उसको क्योर करते हैं। ऑटिज्म डिजीज़ नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। ओके, तो डिजीज़ का मतलब है जैसे कुछ हुआ मेरा बीमारी। ऑटिज्म बीमारी नहीं है, ये न्यूरो डेवलपमेंट जो हम लोग का टिपिकल, जैसा आपका मेरा या 4-5 लोगों का जिस तरीके का हम लोग का न्यूरॉन्स डेवलप हो रहा है ब्रेन में, उस बच्चे में उस तरीके का नहीं हो रहा है। हम लोग उसको न्यूरो डाइवर्जेंट बोलते हैं।
तो ये डिसऑर्डर है। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ 10 में से हम 5 लोग ऑर्डर में हैं, हो सकता है अनदर 5 लोग थोड़ा डिसऑर्डर्ड है, या तो 6 लोग, मतलब जब से ज़्यादा लोगों को हम लोग ऑर्डर में रहते हैं बोलते हैं, तो इट्स अ डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर इज़ नथिंग टू रिलेट विथ क्यूरेबिलिटी के साथ नहीं है, पर हाँ हम लोग उनको हमारे जैसा, हम जैसे बात कर रहे हैं, हम जैसे हम जैसे बिहेव कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम, हम उसको मेन स्ट्रीम करा सकते हैं। और अगेन नॉर्मल एबनॉर्मल वर्ड इज़ ऑल्सो वेरी मच सब्जेक्टिव। आपके लिए मैं नॉर्मल हो सकती हूँ, किसी और के लिए मैं नॉर्मल नहीं भी हो सकती हूँ, है कि नहीं? किसी एक इंसान के लिए बोलेंगे ओ ये औरत ऐसा है, ये नॉर्मल नहीं है कि नहीं? और मेरे लिए कोई ऐसा होगा ओ ये औरत ऐसे इतना ये करती है, ये नॉर्मल नहीं है। तो सबका अपना अपना नॉर्मलिटी अपना कल्चर के हिसाब से हो सकता है, अपने सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है, दैट इज़ द नॉर्मल। सो अभी हम लोग इसलिए किसी को एबनॉर्मल जब बोलते हैं, हमें सोचना चाहिए कि वाई वी कॉल दैट पर्सन एज एबनॉर्मल, राइट? सो दैट्स नथिंग टू बी एबनॉर्मल अबाउट इट। ये है कि हम उसको बच्चे को मेन स्ट्रीम कितना कर सकते हैं, आपका जैसा मेरा जैसा कितना बना सकते हैं, उस पर हम लगा रहते हैं। क्या ये पॉसिबल है, ठीक हो सकता है? सी अगर वो न्यूरो डाइवर्जेंसी कम है, माइल्ड में है, डेफिनेटली बच्चा बहुत इंप्रूवमेंट करता है। मॉडरेट में भी हमने देखा है बहुत इंप्रूवमेंट होता है, सीवियर होता है तो इम्प्रूवमेंट बहुत कम होता है। अच्छा। तो जैसे कि आपने बोला ये एक डिसऑर्डर है, तो ये मतलब ऐसे जो बच्चे हैं वो नॉर्मल स्कूल में जा पाते हैं? यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट। वो लोग नॉर्मल स्कूल में जा पाते हैं। बहुत सारे आपको आजकल ये भी मिलेंगे यहाँ पे, क्या नाम थे उनका, ही वाज अ मॉडल, ही इज़ अ चाइल्ड विद ऑटिज्म, ही हैड सीवियर ऑटिज्म, प्रणब समथिंग वाज देयर, आई जस्ट हैव टू चेक द नेम वंस, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। तो ही इज़ नाउ अ सुपर मॉडल, स्कूलिंग वूलिंग किया, पर उनका मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज्म था। ओके, सो ऐसे लोग हैं यहाँ पे, वी कैन एम्पावर देम। वो लोग, और ऐसा नहीं है, और बहुत सारे टाइम ऐसा होता है ऑटिज्म अगर हाई फंक्शनल है, उन लोगों का इंटेलिजेंस नॉर्मल से ज़्यादा है, तो वो लोग बहुत अच्छे मतलब काम कर सकते हैं, मतलब उन लोगों को आर्टिस्ट अच्छा बन सकते हैं। और इनफैक्ट यू नो जो MS माइक्रोसॉफ्ट में मैक्सिमम पीपल आर हाई फंक्शनल ऑटिज्म। ओके, तो उन लोगों का, एंड इनफैक्ट अब्रॉड में ऐसा भी है कि देयर आर प्लेसेस लाइक दैट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, पीपल विद ऑटिज्म, एडल्ट विद ऑटिज्म। तो उन लोगों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, तो उस जगह पे शोर कम रहता है। तो ऐसा टाइप का चीज़ें हैं जो अभी आई थिंक हाई टाइम हमें इंडिया में भी वो सारी चीज़ों पर काम करना चाहिए। ये बिहेवियरल प्रॉब्लम क्या है आपका? बिहेवियरल प्रॉब्लम मतलब है कि हम जो देखते हैं, जो बिहेवियर में मैनिफेस्ट होते हैं। तो मैं आपको एकदम छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मैं हाथ ऐसे दबा रही हूँ, तो ये हाथ दर्द हो रहा है, ये मेरा पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है? जो मैं दबा रही हूँ ये मेरा बिहेवियर है, मतलब दर्द हुआ इसलिए मैंने दबा दिया, राइट? तो ये आपको दिख गया, तो ये मेरा बिहेवियर दिख गया, है ना? तो सिमिलरली क्या होता है, जब बच्चे को ऑटिज़म होता है या तो सेंसरी इश्यूज़ होता है, ये इनफैक्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी जब होता है, तो उन लोगों को हमें दिखने को मिलता है बहुत सारा बिहेवियरल प्रॉब्लम हम बोलते हैं। तो बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक जब होता है वो बिहेवियरल प्रॉब्लम होता है। कोई हमेशा एक ना एक बिहेवियर तो दिखेगा ही। तो जैसे अगर बच्चे को आँखों से देखने में, मतलब उसका अगर जो विजन पार्ट है इन द ब्रेन, उसमें देखने में उसको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो देखेंगे कि आप वो बच्चा ऐसा 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 कर रहा है आँखों के सामने, तो दिस इज़ अ बिहेवियर। ओके, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बिहेवियरल प्रॉब्लम। ओके, बच्चे को गुस्सा आ रहा है, काट दिया किसी को, बिहेवियर। पर बहुत ज़्यादा हो गया तो बिहेवियरल प्रॉब्लम। काट देना इज़ ऑफ कोर्स अ बिहेवियरल प्रॉब्लम। गुस्सा आया, सर मार दिया, बिहेवियरल प्रॉब्लम। पर ये बिहेवियरल प्रॉब्लम भी डेवलप होता है बिकॉज दे नो कि मुझे ऐसा करने से मैं ऐसा कर सकता हूँ। ओके, ये बिहेवियर जो चीज़ है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं आपको बताऊँ, बिहेवियर जब भी होता है, एक होता है A, B एंड C। A का मतलब होता है एंटीसीडेंट, B इज़ द बिहेवियर, C मतलब कॉन्सिक्वेंस। हमारे ये बिहेवियर हमेशा या तो इस A की वजह से होता है या तो C की वजह से होता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे सपोज माय बिहेवियर इज़ समथिंग लाइक, मैं हमेशा काम पे जाती हूँ, ये मेरा बिहेवियर है। सुबह उठ के गाड़ी चला के मैं काम पे चली गई। क्यों करती हूँ ये बिहेवियर मेरा, क्यों है? क्योंकि मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे मुझे पैसा मिलेगा, कंसिक्वेंस, कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, मुझे रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो उसके लिए मैं ये बिहेवियर दिखा रही हूँ। पर सपोज करिए मुझे सैलरी आना बंद हो गया, मैं तो ये वाला बिहेवियर नहीं दिखाऊंगी, मैं क्लिनिक आना बंद कर दूंगी, राइट? सो सेम चीज़ होता है। अगर आपको गुस्सा आया, आपको किसी पे गुस्सा आया, किसी ने आपको गाली दिया, वो हो गया एंटीसीडेंट।
अब आपको गुस्सा आया, ये आपका अपना ओन बिहेवियर, आप ये बिहेवियर को आप कैसे कर सकते हो, आपको गुस्सा आने के बाद कंसिक्वेंस देखना है, आप किस इंसान के सामने आप गुस्सा दिखा रहे हो। अगर ये आपका बॉस है, आप उसको थप्पड़ नहीं मारोगे। अगर आपसे छोटा है, आपको पता है कि हाँ मैं इसको डोमिनेट कर सकता हूँ, या तो आप गुस्सा करोगे, गाली दोगे, या तो थप्पड़ भी मार सकते हो, दैट डिपेंडिंग ऑन द कंसिक्वेंस। क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर बॉस को मार दूँ या बॉस को गाली दे दूँ, मुझ पे भारी पड़ने वाला है। सो वी नो इधर बिकॉज ऑफ द कंसिक्वेंस और बिकॉज ऑफ द एंटीसीडेंट हम लोगों का ये बिहेवियर डेवलप होता है। तो सिमिलरली इन बच्चों में ऐसे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स या तो बिहेवियर्स डेवलप होते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। उन लोगों का भी तो आप लोग शायद कुछ करते हैं? हाँ, वो बिहेवियरल थेरेपिस्ट कराते हैं मेनली। सो देयर इज़ अ होल थिंग कॉल्ड बिहेवियरल थेरेपी। ओके, सो बिहेवियरल थेरेपिस्ट का अपना क्वालिफिकेशन होता है, तो उस हिसाब से बिहेवियरल थेरेपी कराते हैं। तो अभी मतलब बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं कि बच्चों को कि ऑटिज्म होगा कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स एकदम हम लोग देखने चाहे तो हमें 8-9 महीने से भी समझ में आ सकता है। अगर बच्चे आपको देख के स्माइल नहीं कर रहा है, जैसे 7-8 मंथ्स के बच्चे को हम लेके बात करते हैं ना, तो अगर वो आई कांटेक्ट नहीं मिला रहा है, आप जैसे स्माइल दिया उसको रिटर्न स्माइल नहीं कर रहा है बच्चा, तभी हमें समझ में आना चाहिए देयर इज समथिंग रॉन्ग। इधर देखते कुछ और देखता है, ऐसा देख कुछ? रहा है। हाँ, तो इतना बचपन में तो हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है, फिर भी जनरली हम जैसे पेरेंट्स बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी टाइम पे अगर बच्चा आंखों में आंखें नहीं देख रहा है, स्माइल करने के टाइम पे बैक स्माइल नहीं दे रहा है, तो ये आपका 1 साल से पहले यही 2-3 चीज़ें हमें समझ में आता है। 1.5 साल में हमें बहुत टाइम देखने को मिलता है उन लोग का बातें जो वो कर रहे थे वो कम हो गया। ये अगर दिख गया किसी को, प्लीज़ आप लोग मतलब देर ना करके कोई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर दिख रहा है कि लैंग्वेज रिग्रेस हो गया, ये बहुत कॉमन सिम्टम है ऑटिज्म का। एक और चीज़ है जो हम लोग कॉमनली सुनते हैं कि जैसे कि लड़का लड़की, तो लड़कियों का जल्दी उन लोगों का बात आ जाता है, हाँ, तो लड़कों का नहीं आता, तो ये क्या सच में है? मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ है। हाँ, तो ये एक्चुअली साइंटिफिकली रिसर्च के हिसाब से तो नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये मैंने जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तभी मुझे सुनाई दिया, सो मेनी पीपल कम। हाँ, हम लोग वेट किया 5 साल तक, क्योंकि लड़का है, हाँ। बोलते हैं लड़का है लेट से बात करता है, हाँ। पर ऐसा कुछ नहीं है। लड़का, बहुत सारे लड़के भी है जो बहुत पहले ही बात करते हैं, पर हाँ प्रॉब्लम इन लड़का ज़्यादा होता है। लड़कों में प्रॉब्लम पर ज़्यादा होता है। Y chromosomes are always prone to problems। आपको क्या लगता है जो ये जो ऑटिज्म बोलिए, ये जो प्रॉब्लम जो हो, ये क्या पेरेंट्स का कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, या फिर पेरेंट्स उसको ज़्यादा इग्नोरेंस कर रहे हैं जिसके वजह से ये हो रहा है? देखिए, कोई पेरेंट्स तो अपने बच्चे को हमेशा बेस्ट ही देते हैं, राइट? ये पेरेंट्स का प्रॉब्लम के हिसाब से तो नहीं होगा। सो जनरली पर क्या हो सकता है, माइट भी अगर पेरेंट्स को लगता है कि किसी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे से ज़्यादा बात नहीं करने से भी वो लोग अपने से बात करने लगेंगे, तो वो सोच के वो लोग बच्चे से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अगर वो चीज़ है तो वो हमें बताना है लोगों की कि ऐसा नहीं है, आपको बच्चे के साथ बात करते रहना है, बच्चे को एनवायरनमेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स देना है, बच्चे को दूसरे चीज़ें छूने देना है। जो तो बच्चाटा মানে আলাদা আলাদা জায়গায় যাবে, যত কাজ করবে অত বাচ্চাটার ব্রেনের ইমপ্রুভমেন্ট আসে। इसमें एक सवाल है कि आजकल जो है पेरेंट्स जो है एक ही कमरे के अंदर बच्चों को रखते हैं, इससे क्या इफेक्ट होता है? यही तो वन ऑफ द मेन रीज़न है अभी मतलब सारे प्रॉब्लम्स का, कि बच्चे को देखने के लिए ही चीज़ें नहीं मिल रहा है। उसका जो मतलब फोकल चेंजेस होते हैं ना हम लोग का, मतलब दूर देखते हैं तो हमारा चेंज होता है लेंसेस, राइट? तो बच्चे को आजकल कोई खुला मैदान ही नहीं मिलता है देखने के लिए कि दूर देखे, सामने सामने ही है सारी चीज़, पहली बात। दूसरी बात ये है, हमारा घर में आजकल सब कुछ टाइल्स का चीज़ें हैं, चलने फिरने के लिए भी एकदम वेरी स्मूथ सरफेस, एक ही टाइप का सरफेस हमें मिलता रहता है। फिर सुनने के लिए भी 1 या 2 इंसान का ही बात सुनने को मिलता है, वो भी मम्मा पापा थक जाते हैं दिन भर काम करके, फिर शाम को बात करने का टाइम नहीं होता है। तो इतना सारे सेंसेस में कितना डिप्रीवेशन हो रहा है। इनफैक्ट और एक चीज़ है, जो बच्चे को खाना खिलाते वक्त सारा ग्राइंड करके खिला देते हैं, ये नहीं करना है। बच्चे को थोड़ा सा मुंह का अभ्यास तो करने दीजिए। वॉकर देना इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। वॉकर देने से भी क्या होता है, बच्चा क्या कर रहा है, वो डिपेंडेंट हो रहा है, उसको पता भी नहीं है कि उसको कितना जोर लगा के चलना है, कितना जोर लगा के खड़ा होना है। ओके, सो ऑल दिस आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। जितना हम लोग लाइफ को ईजी बनाते जा रहे हैं, प्रॉब्लम अलग तरीके से हमें पकड़ रहा है। जैसे कि हम लोग बचपन में करते थे कि माँ छोड़ देती थी हम लोगों को, हम जाते थे उधर कीचड़ में, हम लोग एकदम कीचड़ ही कीचड़। exactly. वो आजकल नहीं है। एग्जैक्टली। आजकल मतलब गार्जियन इतना सेंसिटिव हो गया कि मेरी वाइफ की भी बात करो आप,
तो वो बोलती है अरे मत जाओ उधर वो कीचड़ लग जाएगा। हाँ, हाँ, पहले हाँ, हम लोग ऐसा नहीं था। हाँ हाँ एग्जैक्टली तो कीचड़ छूना भी बहुत ज़्यादा सेंसरी इनपुट देता है। Okay. मिट्टी में जाना बच्चे को बहुत सेंसरी इनपुट देता है। Okay. पत्ता तोड़ना, हाँ. चीज़ें खींचना, हाँ. तो ये सारी चीज़ों से बच्चे का टेक्टाइल सेंसेशन अच्छा होता है। Okay. विजुअल सेंसेस अच्छा होता है, स्मेल का सेंस अच्छा होता है। ओके जितना अलग अलग चीज़ें मुंह में लेगा खाएंगे, जितना वो लोग अपना जीभ को यूज़ करेंगे बिफोर 1 year ऑफ एज, उतना उन लोग का कॉग्निटिव एज, ओरल, ये सारी चीज़ें बेटर होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। Okay. तो ये सारी चीज़ हम लोग पूरा कट डाउन कर देते हैं आजकल के बच्चों के लिए। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, बच्चों को थोड़ा बाहर खेलने देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल ये फ्लैट का ज़माना जो आ गया ना, तो इसमें लोग क्या करें? न्यूक्लियर फैमिली, फ्लैट, इसमें अभी तो एक उपाय है, क्रैशेस आर देयर, क्रैश में रख सकते हैं बच्चे को। ओके या तो फ्लैट में आजकल एक बात है कि बहुत सारे बच्चे अगर रहते हैं तो उनको एक साथ खेलने देना। ओके आजकल के हिसाब से हम देखें तो मॉल्स पे घूमने जा सकते हैं पेरेंट्स बच्चे को लेके। एटलीस्ट दिस फर्स्ट 3 years इन लाइफ मुझे लगता है एज ए पेरेंट हमें मेहनत करनी होती है, बच्चों के साथ मेहनत करना होता है। मैं भी एक मम्मी हूँ तो मुझे भी था कि मैं काम भी करती हूँ, आके कैसे बच्चे के साथ मैनेज करूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा रहते हैं, उनके साथ मेरा बच्चा रहता है। तो अभी उसका ऐसा है कि शी हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू गो अराउंड। इन केस आपके मम्मी पापा ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, See, grandparents are one of the very good thing for a child's development आजकल के ज़माने के लिए, क्योंकि आजकल पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं होती है। तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स बाई चांस नहीं है तो आप लोग मतलब द मदर एंड द फादर, वो लोग एटलीस्ट कम से कम दिन में 3 घंटा क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करिए। अपना मोबाइल स्क्रीन हटा के बच्चे के साथ खेलना, इमोशनल कनेक्शन बनाना, जैसे प्ले समथिंग, इन्वॉल्व होकर बच्चों को पूरा अटेंशन देके बच्चों के साथ खेलना, ये भी अगर दिन में 3 घंटा मिनिमम कर लेंगे ना तभी बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। বাহ क्या बात है, খুব সুন্দর আজকে জিনিস শিখলাম, অনেকগুলো জিনিস জানলাম এবং আপনারা হয়তো জেনেছেন। এবং আপনাদের মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তো আপনারা কমেন্টে করতে পারবেন। ম্যাডাম প্রতি মাসে উনি শিলচরে, উনি তারাপুরে উনি আসেন ইউনিভার্সাল জিনিয়াস কেয়ারে, এবং আপনাদের কোনো ধরনের সমস্যা থাকলে मैडम के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, मैं अभी आती हूँ यूनिवर्सल जीनियस केयर में एवरी मंथ, हर महीने आती हूँ। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, कुछ भी इस तरीके का इश्यूज़ रहता है, क्वेश्चन करना है, आप लोग सर के यहाँ मेरे वीडियो के कमेंट पे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यूनिवर्सल जीनियस केयर में आके हमसे मिल भी सकते हैं। हम नंबर भी दे देंगे कांटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल जीनियस केयर का, तो हमरा नंबरों दिए देवो। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे और एक बात बोलना है, मैं यूनिवर्सल जीनियस केयर में आती हूँ और मेरे साथ जो काम करते हैं अनवर है, आलोक विश्वास इज मास्टर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो मैं इनके जब नहीं रहती हूँ, ऐसे भी आलोक सर एंड अनवर सर उन्हीं दोनों देखते हैं सारे बच्चों को डायरेक्टली। तो दे आर मतलब आलोक सर तो डायरेक्टली मास्टर्स है, तो अनवर सर को मेरा ही प्लान जाता है, अनवर सर मेरे प्लान के ऊपर ही बच्चों पे थेरेपी कराते हैं। ही इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन टू टेक द थेरेपी सेशंस। ओके, আমার নাম আনোয়ার হোসেন, আমি স্পিচ থেরাপিতে ডিপ্লোমা করেছি। আমি বর্তমানে হাইলাকান্দি সিভিল হসপিটালে করি আর ইউনিভার্সাল জিনিয়াস কেয়ারে আছি এখন। হ্যাঁ ওকে গ্রেট। আর আপনার? নমস্কার দর্শকবৃন্দ, আমার নাম আলোক শুভ্র বিশ্বাস, আমি একজন অডিওলজিস্ট অ্যান্ড স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজিস্ট। বর্তমানে আমি ইউনিভার্সাল জিনিয়াস কেয়ার আর অ্যাডভান্স ক্লিনিকে কর্মরত আছি। আমরা আমাদের থেরাপি সেন্টারে আমরা যত পেশেন্ট আছে আমি ওটা সুপারভাইজ করি, আর আনোয়ার আছে, ও আমার সাথে এটাতে আমরা মিলে কাজ করি। ধন্যবাদ। তার আগে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি। অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল জিনিয়াস কেয়ারের আমাদের শিলচরের তারাপুরের যে রেলওয়ে স্টেশন, সেই রেলওয়ে স্টেশনের ঠিক অপোজিটের যে বিল্ডিং, সেই বিল্ডিংটা নম্বর দিয়ে দেবো, আপনারা সেখানে ইনকোয়ার করতে পারবেন। এবং আমরা মাঝে মধ্যে আমাদের শিলচর নিউজে ইউনিভার্সাল জিনিয়াস কেয়ার সম্বন্ধে আমরা বলে থাকি। ম্যাডাম যে সময় আসেন আমরা অগ্রিম সবাইকে জানিয়ে দিই। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।